हेलो हेलो। मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर एंड डेयरी बिजनेस गुरु, अपना ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पर ये दूसरा वीडियो लेके आया हूं। आपके समक्ष प्रस्तुत करते समय आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर and dairy business guru, has brought the part 2 video of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. I have been receiving the queries from lot many people that what is next to the BMF. Everybody feels that, most of them, they feel that the BMF will again start. There are majority of people, they have contacted the Animal Husbandry and Fisheries Department, Government of India, through their number, and they have got a kind of reply that there is something coming, just wait. And based on that, people have been waiting. To clear all these things, इन सभी चीजों को समाप्त करने, इन सभी चीजों को जो भ्रम है उसे हटाने के लिए ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। इस वीडियो में, जो पहले वीडियो पार्ट में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। अब हम इस बात पे जोर देंगे इस वीडियो में कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे जाते हैं तो हमारे को फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। सभी लोग सब्सिडी 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 की बात करते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है, और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, कि जिन लोगों ने बीएमएफ के लिए हर समय पूछा है या अप्लाई किया है या करना चाहते हैं, उसमें करीब आधे से ज्यादा लोग कभी भी बीएमएफ को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द पीपल those who try to applying to the BMF may not be able to implement the BMF scheme at their farm. It is not possible. It is very, very difficult scheme, and it is for the persons those who have enormous fund to spare about, and then only they can, such people can only, those who have lot of land, lot of extra fund which they can put into before getting the subsidy, they only can implement this project. This is my own view and nothing related to any of the organization. This is my personal view, because it has got so much commitment, it has got so much the conditions which hardly anybody would be able to compete or anybody would be able to implement. So that is the problem, and that is the reason, that is the basis of my thinking, that more than half would not be able to implement the BMF scheme, even if they are getting the approval from Government of India. अगर आपको BMF के लिए Government of India से अप्रूवल मिल भी गया है तो आप निश्चिंत रहें। यदि आपको सब्सिडी का कुछ हिस्सा मिल भी गया है तो आप निश्चिंत रहें, आप सही समय से 1 वर्ष जो समय दिया गया है उसको बढ़ा लीजिए 2 वर्ष तक भी आप ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इन चीजों की जरूरत है, इसमें जो ब्रीडिंग का सपोर्ट चाहिए, जो फीडिंग का सपोर्ट चाहिए, वो 1-2 साल में कोई भी फार्म ओनर जिसने पहले से 100 एनिमल से कम का फार्म चलाया हुआ है वो नहीं बना सकता। और इसी के आधार पर मेरा सोचना है कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशंस के लिए जो लोग सब्सिडी जान करके उसके आगे आ रहे हैं, उसमें 2 बातें आपके दिमाग में पड़ जानी चाहिए मेरी तरफ से। पहली बात, ये सब्सिडी आपको मिलने की संभावना बहुत कम है,
जब तक कि आप उतना ही पैसा अपने तरफ से फार्म में न लगा दें। सब्सिडी 8 चरणों में मिलती है और कितने वेरिफिकेशंस और कितने पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन के बाद मिलता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन मोड में जाएंगे। When you will enter into the implementation mode of the BMF, then you will understand how many documents and how much formalities you have to do to get 12.5% part of the subsidy. Though the subsidy is shown 200 lakhs, but how do you get it? How much you get it? And how much you spend before getting it? That is a question. So on those things, we think that what is next to the BMF is what is existing today, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. Yes, BMF would also be a implementable project if Government of India thinks on reducing the number of animals. They have fixed it 200 animals, and some part of the country they have fixed for the 50 animals. They have to come with a project of 100 animals also. And there should not be any limit, there should not be any restriction on the sale of the heifers, because the sale of the heifers should be left to the farmers. Anyway, we are not discussing here the breed multiplication scheme, but yes, I will repeat here, it's very, very, very 3 times very difficult project which anybody is going to implement. So mind it, subsidy is only the name here. You will be only getting after equal amount of fund putting from your pocket to the project, right? Now let's see what is this infrastructure development fund for the animal husbandry. We are only restricted to the dairy, and let's see how does the scheme gives the financial benefit. हम थोड़ा सी स्लाइड में आपको बताना चाहेंगे, ये केवल 20 मिनट का वीडियो होगा। हम बताना चाहेंगे कि इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है और यहाँ पर ईज ऑफ ऑपरेशन क्या है, आपको कितना रिलैक्स फील होगा इस प्रोजेक्ट को चलाने में। आइए देखते हैं। ये हमारे क्रेडेंशियल, ये हमारा यूट्यूब हैंडल और ये हमारा हमारा साइट, और आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स, ये सारी चीजें दी हुई है। आइए देखते हैं। हमने ये पहले भाग में भी इस स्लाइड को इंक्लूड किया था, खाली ये बताने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वो होता है जो कि डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है, के लिए होता है। वो मीट प्रोसेसिंग के लिए भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एनिमल फीड प्लांट की चर्चा हम करेंगे। वी विल डिस्कस एनिमल फीड प्लांट, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। आप समझें कि आरजीएम का जैसे हिस्सा था ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का भी हिस्सा था ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जो यहाँ पे हमने चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे dairy processing plants value addition infrastructure will be included in the scheme. Animal feed plants will be included in the scheme. Animal waste and wealth management, agri waste management will be included in the scheme. तो इन चीजों पर ही ये एनिमल हस्बेंड्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड काम करता है। स्कीमें इसी पर सैंक्शन होती हैं। यहां पर भी आपको लैंड का रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपका ओन लैंड होना चाहिए और नहीं तो लीज लैंड होना चाहिए जो मोर देन 10 इयर्स का है। लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया गया है कि आपको कितने लैंड रखने हैं। जैसे वहां पे मिनिमम 5 एकड़ था और कम से कम 20 एकड़ फॉडर के लिए चाहिए था, अदरवाइज आप 200 एनिमल को खिला नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर रिलैक्स कर दी गई हैं। अभी आप देखेंगे ऑब्जर्विंग द प्रॉपर एल एक्सेट्रा, उसको छोड़ दीजिए, हम इस पे सीधे आते हैं कि पहले ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। ये प्रोजेक्ट 2021 से चल रहा है।
या संभवतः उसके पहले से भी, मुझे इसकी जानकारी कम है। लेकिन 15,000 करोड़ was the you know incentivizing investment proposed, which has now raised to 29,110, and now this is extended up to 25 to 26, 2025 से 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। अब आपके पास यही एक समय है जिसमें कि इस फंड का, ये जो फंड का एलोकेशन दिखा रहा है, ये फंड का एलोकेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम के पीछे रहेंगे तो तब तक ये भी आपका फंड जो है वो भी निकल जाएगा। इसके जो मेजर पार्ट है वो बता देते हैं। आई विल जस्ट डिस्कस द मेजर पार्ट ऑफ दिस। फर्स्ट ईयर अप फ्रंट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? अगर आपका लोन 10% पे सैंक्शन हुआ है तो उसमें से 3% घटा दिया जाएगा और वो 3% सरकार सीधे बैंक को दे देगी, आपको नहीं देना होगा। यानी आपका लोन का जो लोड होगा, जो बर्डन होगा, वो 10% से 7% पा जाएगा। और यही कैलकुलेशन हम इसमें आपको बता के दिखाना चाहते हैं कि ये क्यों एक बेनिफिशियल स्कीम है, जिसके लिए आम जनता इसके ऊपर नजर नहीं डाल रही है, क्योंकि सब्सिडी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सब्सिडी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं। वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं था बीएमएफ में। जो भी बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया वो इंटरेस्ट आपको पे करना था। और आप ताज्जुब करेंगे कि कम से कम 360 का लोन, 360 लाख का लोन आपके ऊपर चढ़ जाता था, जिसमें 200 सब्सिडी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन के ऊपर आप पे चढ़ाती थी, जिसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती थी, इसलिए वो आपका लोड नहीं था। लेकिन यदि आप प्रोजेक्ट बीच में छोड़ते हैं तो वो लोड आपका है, क्योंकि सब्सिडी का वही हिस्सा आप में जुड़ेगा जो हिस्सा आपने कंप्लीट किया है। जो हिस्सा कंप्लीट नहीं किया है वो आपके लोन में जुड़ेगा। तो आप इन चीजों को समझते कम है मेरे ख्याल से फार्मर लोग। और इस पे इस स्कीम पे जिसमें कि ईज ऑफ ऑपरेशन, काम करने की जो फ्रीनेस है वो यहां पर है, उसकी हम चर्चा धीरे धीरे इस पे करेंगे। आप जानते हैं कि ओल्ड बीएमएफ जी स्कीम, ओल्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वो बंद हो चुका है, उसके अंदर जो टर्म्स थे, जो आपको करने थे, ये सभी लोगों को मालूम है। और आप देख लीजिए कि कम से कम 360 से 460 लाख का बैंक लोन होना था आपके ऊपर। कितने लोग, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बीएमएफ को, कितने लोग हैं जो इतना बड़ा लोन ले करके और सस्टेन कर सकते हैं? चलिए हमने मान लिया कि 200 लाख का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगा, लेकिन 160 से लेकर के 260 तक का जो लोन है ये तो आपको पे करना है। इसके लिए कोलेटरल देना है, इसके लिए लैंड मॉर्गेजिंग करनी है, इसके लिए आपका नेटवर्थ मॉर्गेजिंग करना है, आपका घर, जमीन, जायदाद सब कुछ लिख जाएगा इसमें। तो ये चीजें फार्मर नहीं समझते हैं। उन्हें एक चीज समझ में आती है, सब्सिडी। अरे भाई, ये सब्सिडी आपको मिलने वाला नहीं था जब तक आप इक्वल अमाउंट खर्चा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। इसकी चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप वीडियो को रोक करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इंग्लिश में है, आप चाहें तो किसी से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करा लें। मैंने सुना है कि मेरे वीडियो को दूसरी भाषाओं में लोगों ने ट्रांसलेट किया है और वो सर्कुलेट हो रहा है जो बीएमएफ पर है। मेरी गुजारिश होगी कि आप वीडियो को यदि दूसरे भाषा में सर्कुलेट भी करते हैं तो कृपया इसके कंटेक्स्ट को, इसके जो स्लाइड्स हैं, इसमें जो डेटा है, उसे कृपया न बदलें। प्लीज डोंट चेंज द डेटा एंड रेफरेंसेस एंड द कंटेक्स्ट of the of my videos if you are converting into from English and Hindi to any other local language. You are free to convert. I agree with that because it will be benefit to the farmers. I agree. But at the same time, don't fiddle with the data.
If you are fiddling with the data, you are harming to the farmers. Come to the next. Excuse me. This is the BMF versus AHI. अब BMF में क्या था? What was there? Subsidy 200. There is no subsidy. Only interest subvention 3%. It was a difficult terms. You know, land 5 acre plus 20 acre. Here there is no terms at all. Just continue. Only one term is there in AHIDF, that you please continue paying the loan to the loaning agency. That's all. No terms. And there were so many terms. This I have written only 22. There are many. Third point is funding only through NDDB for animal, equipment and construction. Here also funding by bank, NDDB, NABARD, NCDC, and this is any bank, NABARD, NCDC. So the multiple options are there to take the loan. This is also for animal, construction and equipment. Mind it. There is no interest subvention on the land, working capital, pre-operative, seed money and interest on working capital. All these things will not be covered into interest subvention. What interest subvention is going to be covered is on the project cost, where the animal, construction and equipment are covered into that. Come to the next point. Before approval, there were lot of terms and huge documentation in BMF. Here there is no documentation, only a DPR and plus your application is sufficient for getting the loan. Huge bank loan, I have already discussed that. Here the bank loan is as per the DPR, as per the project cost. If you are going for 20 animal, you will get the loan. If you are going for 30 animal, 50 animal, 70 animal, 80 animal, any amount of size of the farm will be covered into this and you will be eligible to get the loan. So as per the DPR, what DPR says, and that is final for funding. So be careful. Here there was a huge amount fixed. Here there is no amount fixed. It is on you. Even a small medium farmer can also apply and get the loan. Only condition is, if you are taking the loan, if you are taking the scheme, you have to just continue regular payment of your interest and principal amount. Whatever is your EMI comes, that you have to fix. If you are not going to pay the EMI, if there is a default, chances are very much, because people come in with the thinking that we will take the animal husbandry loan and all that, and then we'll become the non-performing asset. No sir. If you are becoming non-performing asset, nothing will happen. Only your 3% subvention will be closed. Now you are a pure loanee to the bank. Now you are going to give 10% interest on the bank loan. Matter ends. No punishment, no recovery, no agreement, nothing. So there was an agreement of 360 lakhs loan you had to sign in BMF. Here there is no agreement. No documentation, only DPR and plus your application. Application is also online. So don't worry. This is a most easy scheme. Now come to the lots of terms. Even after approval, there are many terms. Here there is no terms, only one term. Just pay your EMI. आप EMI पे करते रहें, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का हर वर्ष मिलता रहेगा. आप आगे आइए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल थ्रू NDDB. यहां पर अप्रूवल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में अप्रूवल डायरेक्ट फ्रॉम बैंक है. ये तो आपका और बैंक से रिश्ता है. बैंक ने उनको बता दिया सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि साहब हम 3% सबवेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इतना पैसा दे दीजिए. हमने लोन सैंक्शन कर दिया. तो यहाँ पे जो लोनिंग एजेंसी है, बैंक है, NDDB है, नाबार्ड है, NCDC है, ये कोई भी कर सकता है लोन. तो यहाँ पर छूट दिया हुआ है. कोई भी फार्मर
जो पढ़ा लिखा कम है, कोई भी फार्मर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड की जा सकती हैं। उसके बाद एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पे कि EBLR के बेसिस पर MSME प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स जो MSME में कवर्ड हो सकते हैं, उनको EBLR इंटरेस्ट रेट पर कंसीडर किया जाएगा। आप जानते हैं कि आपकी सीड मनी भी काफी कम हो जाती है अगर आप MSME स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और उसके लिए आप NDDB के साइट पर जाएं और जानकारी लेने के लिए ये नंबर दिया हुआ है। यू कैन कॉल दिस नंबर, टॉक टू आइदर अलका, श्री दीपक, श्री हरेंद्र और मिस रीति, or anyone. You can write an email to NDDB. This we have collected from the NDDB site. You can also go to the NDDB site and you can see all these details. But these details, the comparison between BMF and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund has been made by us. We have prepared this slide. This is we are having the authority. We are having the copyright that we have prepared this comparison. What are the MSME? MSME term and plus. So it gives what cannot be covered in the interest subvention. Look my cursor and read it. Now what we have given is that they have, this is the budget. They are announcing there's new credit guarantee for the MSME scheme. There are benefit in the MSME scheme. There is a credit guarantee. There is a different interest rate for MSME. And there is a different seed money for MSME. If the normal person is depositing 20% as a seed money or 25% as the seed money, a MSME will deposit only 10%. So like that, these are the benefits given. Contact to official. आप MSME को कैसे जानेंगे, कैसे बात करेंगे? ये इंडिया के सारे MSME के कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को सीधे आप चले जाएं और वहां से आपको एक पोर्टल खुलेगा जिसमें सबके फोन नंबर, एड्रेस, नेम वगैरह दिए हुए हैं। ये हम इसलिए आपकी एक्नॉलेजमेंट का नहीं रखे हैं स्लाइड। हम हमेशा एक्नॉलेज करते, वी ऑलवेज एक्नॉलेज फ्रॉम वेयर वी गेट द डेटा फॉर our video. But that thing why we have not used now, because we have given everywhere the link. That link directly you can go and see the further details. This is the facilitation office. If you go to this link, you will get the facilitation. You have some questions, you can go on this link. There are direct contact possible. You can directly inquire and get clarification for your queries. Let's go to the next. This is the definition of MSME given. Here we have given new, those who want to register new. This is the site for new registration. You can directly go and register it, no issue. Only your Aadhaar is required. Everything is very simple. Your phone number and Aadhaar you can register as a Udyami, as an entrepreneur. And these are the categories. This is for the micro, this is for the small, and this is for the medium. You can read the current condition. This is latest we have given. This is ये latest है. इसमें जो condition micro के लिए, small के लिए, medium के लिए दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। External benchmark based lending rate के ऊपर आपकी लोनिंग होगी, जो नॉर्मल लोनिंग से काफी फायदेमंद होती है। इसलिए यदि छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर तो किसी प्रोजेक्ट का साइज का कोई डेफिनेशन नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो EBLR आपको केवल MSME से मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये साइट है जहां पर जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उद्यमी रजिस्टर्ड हैं तो क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हमने इसलिए डाला है कि आप देखें कि ये स्कीम 25-26 तक गजेटेड है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर दिया है, पैसा उपलब्ध है, लेने वाले की कमी है। आप इधर आते हैं, ये देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ है, MSME फर्स्ट
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की क्या कैटेगरीज होंगी जो हमने पिछले स्लाइड में दिखाया, द सेम थिंग इज गिवन ओवर हियर. What we have given here is a very important Prime Minister Employment Generation Program. If any confusion, anything you want to ask, you please directly talk to the Under Secretary, and this is the number given over here, right? Technical queries, you can directly talk to this number, right? So these are the contact number what we have facilitated, taken from the site of MSME, right? You can also go to these links and you can find it. अब आप देखें कि अंतर कहां पर है, क्या हमको बेनिफिट मिलता है. वेयर टू कॉन्टैक्ट फॉर एमएसएमई, वो हम लोगों ने यहां पे दिया है कि ए हमने बेंगलोर का दिया है, ये हमने दिया हुआ है महाराष्ट्र का, जिसमें पूना का एड्रेस है, मुंबई का एड्रेस है, जिसमें नंबर्स है, नागपुर का है, पुणे का है. देखिए नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि साहब मैं कहां जाऊं एमएसएमई के बारे में, अगर हमें पता करना है तो वेयर शुड आई गो. सो ऑल दीज डिटेल्स वी हैव गिवन. व्हाट वी हैव गिवन हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पे आपको फ्री छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं. एनी ब्रीड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनी नंबर ऑफ एनिमल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनी मेथड ऑफ ब्रीडिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे बीएमएफ में था. ये सारे रेस्ट्रिक्शन बीएमएफ में थे. एनी साइज ऑफ शेड, आप शेड का कोई भी साइज रख सकते हैं अपने एनिमल के हिसाब से. द साइज ऑफ लैंड, एनी साइज ऑफ लैंड, आपके पास 2 एकड़ है कर लीजिए, आपके पास 1 एकड़ है कर लीजिए, आपके पास 5 एकड़ है कर लीजिए. सो लाइक दैट. एनी डेयरी प्रोडक्ट, आप कर्ड बनाना चाहते हैं, घी बनाना चाहते हैं, आप मिल्क को पाउच में बना के बेचना चाहते हैं, पनीर बनाना चाहते हैं, वो सबके प्लांट, सबकी मार्केटिंग लिंकेज के लिए आपको यहाँ फंड उपलब्ध है. एनी डेयरी प्लांट, कर्ड का, पनीर का, घी का, बटर का, कोई भी जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके प्लांट खरीदने में जो पैसा लगेगा दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर, वो आपको मिल जाएगा. कैटल फीड, जानवर को खिलाने के लिए, कैटल फीड के लिए कोई पार्ट, कोई भी सिस्टम नहीं था बीएमएफ में कि कैसे जानवर खाएगा, कैटल फीड कहां से आएगा. कैटल फीड प्लांट का जो पैसा लगता है, करीब जैसा प्लांट होगा उसके हिसाब से पैसा लगता है. देन फ्रॉम वेयर दैट मनी इज गोइंग टू कम, इट वाज साइलेंट इन बीएमएफ. Those who have gone into the BMF after approval, now they are getting the pinch. Now look at this. Any person or company जो एलिजिबिलिटी आपको बीएमएफ में थी, चूंकि आरजीएम की एलिजिबिलिटी है, वही की वही एलिजिबिलिटी यहां भी है. एनी प्रोजेक्ट नॉर्मल है या एमएसएमई है, दोनों को फंड होगा. एनी बैंक, एनडीडीबी, एनसीडीसी, नाबार्ड, ये फंडिंग एजेंसी. तो इस प्रोजेक्ट में सारी चीजें खोल के आपके सामने रख दी गई हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आप बड़े प्रोजेक्ट को लेके नहीं चला करके और उसके पेनाल्टी देना चाहते हैं, या छोटा प्रोजेक्ट चला करके अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं. आइए देखते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है. इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट का 100 लाख का है, मैं इसे हिंदी में इसलिए बताऊंगा कि काफी लोगों के समझ में आएगा. प्रोजेक्ट कास्ट इफ इट इज इन 100 lakhs, मोरेटोरियम 1 year, कैपिटलाइजेशन एट 10% ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट पीरियड 8 years, ये सारे कंडीशंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के हैं. अगर ये ले रहे हैं, केवल ये फ्री है. प्रोजेक्ट कास्ट आपका 500 करोड़ का, 500 लाख का भी हो सकता है, आपका 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेट करने की कोशिश किया है कि आपको फायदा कहां मिल रहा है. जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, वो सब्सिडी 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 में, और ये सोचते हैं कि सब्सिडी लेके बैठ जाएंगे और हमारा फायदा हो जाएगा. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. जिनका सैंक्शन हुआ है वही चला लें, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है. आइए हम देखते हैं, अगर टर्म लोन आपका 100 का है और अगर आप एमएसएमई में जाते हैं तो 10% की सीड मनी है, तो 90 लाख आपका लोन हो जाएगा. आप जानते हैं सीड मनी आपको देना पड़ता है और लोन बैंक देता है.
अब ये लोन बैंक में चूंकि 1 साल का मोरेटोरियम है तो वो 99 मतलब आपका प्रिंसिपल 90 से बढ़ के 99 हो जाएगा। क्यों? 10% इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। 1 साल तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यदि आप एमएसएमई में जाते हैं तो एमएसएमई में आपको 2 साल पेमेंट नहीं करना है। ये कौन देगा साहब? कौन सा बैंक ऐसा अभी तक है, प्रोजेक्ट कौन सा स्कीम है जिसमें आप लोन लेते हैं और 2 साल तक आप पेमेंट नहीं करेंगे? वो कैपिटलाइज होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट बाद में लगेगा। वही यहाँ कैपिटलाइज हुआ है। ये 9 लाख जो है 1 साल जो आपने नहीं पे किया उसका है। तो ये आपसे प्रिंसिपल में जोड़ करके उसके ऊपर इंटरेस्ट से लिया जाता है। सारी बातें छोड़ दें तो केवल ये देखिए, एक कैटेगरी हमने ये बनाया जहां 10% सीड मनी है, जहां 20% सीड मनी है और जहां 25% सीड मनी है। तो लोन का अमाउंट घटता जाएगा। अगर आपका पैसा 25 लाख लग गया तो 75 लाख ही लोन आपको चाहिए अगर आपका प्रोजेक्ट का 100 लाख है। तो ये कैटेगरीज में हमने क्या देखा कि अगर आप 10% के इंटरेस्ट पे रहते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगता है। देखिए 10% पे रहते हैं तो 51 करीब 51.5 लाख का इंटरेस्ट आप देते हैं। कितने साल में? 8 साल में। आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तब आपको पता चलेगा कि हर साल हम हार्डली कितना होगा, 5 लाख के लगभग इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। 5.5 लाख लगभग इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन यहां इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट सबवेंशन आता है तो ये 51.5 लाख घट करके 34, पौने 35 लाख रह जाता है। देखिए आप देखें फायदा कहां हुआ। यहां पे देखें आप, आपको 16 करीब 17 लाख का फायदा हो रहा है। ये 17 लाख सब्सिडी नहीं है तो क्या है? ये कोई नहीं समझ रहा है। सारे फार्मर पीछे पड़े हुए हैं, बीएमएफ कब आएगा, बीएमएफ कब आएगा, बीएमएफ कब आएगा। भाई बीएमएफ तुम चला पाओगे कि खाली पूछ रहे हो? ये आप चला सकते हो। और इसको देखो आप कि यहाँ 17 लाख का फायदा आपको हो रहा है। नीचे जाएंगे, ये हमने 3 कैटेगरी बनाई है। एक में इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, बैंक लोन हमने 10% लिया है बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने 7%। पहले जो सब्सिडी का सबवेंशन था इंटरेस्ट का वो 2.5% था, इसलिए 7.5 पर भी कैलकुलेट करके दिखाया है कि 2.5% में भी आपको यहाँ 14 लाख का फायदा था। इसी तरह से अगर 20% लेते हैं मतलब लोन अमाउंट कम हो गया, आपका पैसा बढ़ गया। लोन अमाउंट कम होता है तो देखिए आपको 15 लाख का यहाँ फायदा होता है। ये 8 साल में होता है। 8 साल में 15 लाख हुआ तो आप देखेंगे कि 1 साल में आपका करीब करीब 1 साल में करीब पौने 2 लाख आप लोन आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। कौन देगा 7% पर इंटरेस्ट पर? आप बताइए कौन सा बैंक है? तो वो चीज अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम इस नियत से नहीं आए हैं कि हम पैसा लेके भाग जाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे, तब ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये स्कीम बहुत अच्छा है, करना चाहिए। इसके अंदर केवल आपको डीपीआर बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है। कहीं कोई भी जो देना है वो बैंक को देना, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है डायरेक्टली। वो आपसे कोलेटरल लेगा, वो जो भी पेपर मांगता है वो तो वहां भी देना था आपको, बीएमएफ में भी देना था, यहां भी आप दे रहे हो। इसी तरह से अगर यह 25% आपका पैसा होता है, 75 लाख का लोन होता है, तो भी आपको 14 लाख का फायदा हो रहा है। अगर आप 7 साल में 14 लाख का फायदा करते हैं तो 2 लाख पर ईयर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी सब्सिडी है। लेकिन ये हमने 100 रखा है, इसी को आप 400 कर दीजिए। 400 कर दीजिएगा तो क्या होगा आप बताइए? 400 कर देंगे तो आपका जो फायदा होगा वो 68 लाख का करीब फायदा होगा। करके देख लीजिए। तो आप साइज छोटा करते हैं क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो आप छोटे से क्यों नहीं शुरू करते हैं? हमेशा फार्म को छोटे से शुरू करके बड़े पे ले जाया जाता है। लेकिन ईमानदारी से जो लोग केवल सब्सिडी खाने की नियत से आते हैं, उन लोगों के लिए ना तो बीएमएफ था और ना ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स चाहती हैं कि प्रोजेक्ट लगे,
वो ये नहीं चाहती हैं कि इनका एनपीए बने। तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन फाइनेंशियल एनालिसिस करके दिखाया है। इससे आप किसी से भी कैलकुलेट करवा लीजिए कि इतने परसेंट पर, ये हमने कंडीशन दे दिया, किसी भी सीए से कैलकुलेट करवा लीजिए कि ये अगर है, अगर इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और क्या लाभ होगा। ये जो हमने डेटा दिया है इसको मैं चैलेंज करता हूं, किसी से आप चेक करा लीजिए। हम लास्ट स्लाइड में जा रहे हैं, जो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। यहां भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने प्रश्न हमें उपरोक्त ईमेल पर भेजें। जो लोग नहीं समझ पाते इंग्लिश में, उनके लिए मैंने हिंदी में लिखा है कि प्रश्न आप ईमेल पर भेजें, हम उनका उत्तर जरूर देंगे। आप हमें कॉल करें, लेकिन सही का प्रश्न पूछें, हम जरूर आपको बताएंगे। प्रश्न ही ऐसा होता है जिसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे। कब आ रहा है स्कीम, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं हूं, मैं तो एक फ्रीलांस डेयरी गुरु हूं। तो मैं तो अपने अपने औकात में रह के आपसे बात कर सकता हूं। ये कैसे बता दूंगा कि कौन सी स्कीम आ रही है? कृपया ऐसे प्रश्न न करें। आप ये प्रश्न करें कि हम फार्म को कितने से शुरू करें, कितने पे खत्म करें, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमको कैसे फायदा करेगा। वहां हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियो को दूसरे भी भाषाओं में, जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने पहले चेंज किया है बीएमएफ को दूसरी भाषाओं में और पॉपुलर बनाया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। इसे भी आप पॉपुलर बनाइए। ये स्कीम बहुत दिन की नहीं है, ये 2026 मार्च में खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये स्कीम नहीं रहेगी। कृपया ध्यान दें और छोटे किसान इसमें फायदा उठाएं, छोटे छोटे लोन लें और बिना कंडीशन के काम करें, फ्री होके काम करें और अपना फार्म चलाएं, फायदा कमाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा फार्मर के साथ हूं। दिन में 11 बजे के बाद कभी भी आप मुझसे फोन करें। 11 से लेकर के 12 तक मैं बैठता हूं। फार्मर्स को फ्री में उनको एडवाइस देने के लिए आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। कृपया प्रश्न जो है वो रखिए जो हमारे औकात का प्रश्न हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई